Hi students, welcome to Chaitanya Mathematics Academy classes, and this one is intermediate first year A paper trigonometric, very important 4 marks problems. Okay, short answer questions. Already 9 problems completed, and now this one is 10th problem. Okay, prove that cos square pi by 10 plus cos square 2 pi by 5 plus cos square 3 pi by 5 plus cos square 9 pi by 10 equals to 2. So we have to show that answer is 2. अपन आंसर क्या प्रूव करना, 2 प्रूव करना. सो दिए सो इक्वेशन क्या है एक बार लिखेंगे, cos स्क्वायर. सो बिफोर दैट, सो पाई बाई 10, इन दिस पाई बाई 10 इज देयर. सो पाई बाई 10 मीन्स, पाई मीन्स 180 डिग्री. ओके, बाई 10. सो 0 0 कैंसल मीन्स आंसर इज 18 डिग्री. मीन्स so pi by 10 means we have to substitute 18 degree. pi by 10 के जगह पे क्या substitute करना, 18 degree substitute करना. Okay, now pi by 5, pi by 5 means pi value is 180 degree. Okay, by 5. Okay, so 5 से cancel करें तो 5 3 is 15, remaining 3 0 means 5 6 30. Okay, so cancel करें तो कितना आता, 36 आता. Means in the question substitute pi by 10 value is 18 and pi by 5 value is 36 degree. Okay, right. So first write the equation, given equation. Question क्या दिए वो लिखेंगे, cos square pi by 10 plus cos square 2 into pi by 5, 2 pi by 5 को थोड़ा सेपरेट कर रहा हूँ मैं, plus cos square 3 into pi by 5. Okay, and plus cos square 9 into pi by 10, cos square 9 into pi by 10. Okay, right. Just separate करके लिखा, 2 into pi by 5 and 3 into pi by 5 and 9 into pi by 10. Now substitute the values. What are the values? Cos square pi by 10 means 18 degree. Okay, plus cos square 2 into pi by 5, pi by 5 means 36 degree. Okay, and plus cos square 3 into pi by 5 again means 36 degree, plus cos square 9 into pi by 10, pi by 10 means 18 degree. Clear? Okay, next cos square 18 degree as it is. ओके, cos स्क्वायर 18 को सेम एज इट इज लिख रो. नेक्स्ट 2 into 36 कितने होते, 72. 2 into 36 डिग्री इक्वल्स टू 72. एंड 3 into 36 कितने होते, 3 into 36 मीन्स 108 डिग्री. ओके, 3 6 18, 1 कैरी, 3 3 9 प्लस 1 10 डिग्री. ओके, 108 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 9 18 9 162. Okay, 18 degree into 9, 9 into 18 degree means 162 degree. Okay, right. So this one simplification as cos square 18 को same लिखो. Okay, cos square 72 degree can be written as 90 degree minus 18 degree. See, cos square same लिखा, 72 डिग्री को क्या करें अपन, 90 डिग्री में से 18 डिग्री निकाल लिया तो कितने आता कंपलसरी, 72 आता. सो 72 डिग्री कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री. ओके, सो 72 डिग्री को क्या करें अपन, 90 माइनस 18 डिग्री. नेक्स्ट 108 डिग्री को क्या करें अपन, cos स्क्वायर 90 प्लस 18 डिग्री. देखो एक बार 90 प्लस 18 पर तो कितने होता, 108 डिग्री. ओके, नेक्स्ट cos स्क्वायर 160 को 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं ना. एक बार देखो, 162 प्लस 18, 8 प्लस 2 10, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8. ओके, सो 18 आया जैसे लिखने को कोशिश कर रहे हैं अपन. ओके, 18 डिग्री एज इट इज. 72 डिग्री को क्या करें अपन, 90 माइनस 18 डिग्री लिखे. 108 को क्या करें अपन, 90 प्लस 18. 162 को क्या करें, 180 माइनस 18 डिग्री. क्लियर? ओके, नाउ cos square 18 डिग्री एज इट इज. ओके, एंड प्लस 90 मीन्स पेयर. ऑलरेडी प्रीवियस प्रॉब्लम्स में बोले 90 मीन्स पेयर. पेयर मीन्स cos रहा तो साइन लिखना, साइन रहा तो cos लिखना. बिकॉज cos पेयर इज साइन, साइन पेयर इज cos. ओके, साइन स्क्वायर 18 डिग्री. क्लियर? नेक्स्ट प्लस 90 अगेन पेयर मीन्स cos पेयर इज साइन स्क्वायर 18 डिग्री. ओके, 90 प्लस में पॉजिटिव आता, नेगेटिव आता, बट स्क्वायर है ना, स्क्वायर रहा तो नेगेटिव होंदो, पॉजिटिव होंदो, पॉजिटिव ही होते अपने को. राइट, ये कंप्लीट होगा. दिस वन 180 मीन्स सेम.
90 मीन्स पेयर लिखना, साइन पेयर, साइन रहा तो साइन पेयर कास, इफ कास इज देयर मीन्स द कास पेयर इज साइन. ओके, सो 180 मीन्स सेम, सेम मीन्स कास रहा तो कास इज लिख रहे, कास स्क्वायर, एंड व्हाट इज द डिग्री वैल्यू, 18 डिग्री. सी, cos square 18 plus cos square 18, 2 cos square 18, sin square 18 plus sin square 18, 2 sin square 18 degree. Okay, sin square plus sin square, 2 sin square 18 degree, and cos square 18 plus cos square 18, 2 cos square 18 degree. Clear? Right. So see, 2 is the common, 2 is the common means sin square 18 degree plus cos square 18 degree. Already we know theta value same रहा तो which is in the form sin square theta plus cos square theta value is 1, means identity formula sin square theta plus cos square theta equals to 1. So 2 into 1 2. Clear? So which is required answer. Here I am using the formula sin square theta plus cos square theta equals to 1. This is the formula. Clear? So this is the solution of 10th problem. Clear? So next question लिखेंगे. Right, next question is, so 9th problem complete हो, 10th problem. Okay, next question is solve the equation 2 cos square theta plus 11 sin theta equals to 7. Okay, right. So solve means we have to solve the equation, means find the variable. What is the variable in this? Theta value. We have to find out theta value as well as we can write general solution. Okay, right. So solve the equation. First of all, write the given equation 2 cos square theta plus 11 sin theta equals to 7. Clear? So this one, this type of questions को अपन क्या करना, पूरे साइन में तो भी कन्वर्ट करना, पूरे कास में तो भी कन्वर्ट करना. क्वेश्चन में क्या क्या है अपने को, साइन टर्म है एंड कास टर्म है, तो ये ऐसे वाला प्रॉब्लम को सॉल्व बोल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा रहा तो क्या करना, अपन पूरे इक्वेशन साइन है अपन को कास है, सो तो पूरा इक्वेशन साइन में तो भी कन्वर्ट करना, नहीं तो पूरा इक्वेशन कास में तो भी कन्वर्ट करना. ओके, सो यहाँ पे देखो साइन को कास में कन्वर्ट करना बोले तो स्क्वायर रूट आता, फिर यहाँ पे रहा था cos स्क्वायर थीटा मीन्स डायरेक्ट अपन साइन में लिख सकते हैं. ओके, सो 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, रिमेनिंग एज इट इज 11 साइन थीटा and plus 7 become minus 7 to the left side equals to 0. Okay, so here the formula is sin square theta plus cos square theta equals to 1. We have the identity formula. Okay, from this cos square theta, so cos square theta formula is cos square theta यहाँ पर रखो, cos square theta same, right, plus sin square theta become minus sin square theta, already 1 is there, plus sin square theta become minus sin square theta. So cos square theta value substitute 1 minus sin square theta. This is the formula. Okay, now multiply with 2 into 1 2 minus 2 into sin square theta 2 sin square theta. Okay, and plus 11 sin theta as it is, and minus 7 also as it is equals to 0. Okay, right. So square term always should be positive. So first क्या करेंगे, first square term तो first ही लिखेंगे. Okay, minus 2 sin square theta को first ही लिखेंगे. Okay, minus 2 sin square theta first ही लिखे, then 11 sin theta को बाद में लिखेंगे, then 2 minus 7 कितना होता, minus 5 equals to 0. Minus 2 sin square theta plus 11 sin theta and 2 minus 7 is minus 5. So square term should be always positive, means let minus is the common. Minus is the common means minus term become plus term and plus term become minus term. So minus common निकाल रहे बोलो तो उसका मीनिंग क्या है, माइनस वाला प्लस होता, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, एंड माइनस कॉमन मीन्स 0 by minus 1, 0 by something means always 0. Okay, right. Now this is the quadratic equation. Okay, 2 sin square theta, 2 sin square theta and minus 11 sin theta can be written as minus 10 sin theta minus 1 sin theta. Splitting method. Okay, splitting method, 2 into 5, a value 2, c value 5, a b c, a x square plus bx plus c क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन में है
तो इसको क्या कर रहे हैं अपन, ऐसा ही सोचो 2x² माइनस 11x प्लस 5 इक्वल टू 0। साइन के जगह पे x ले लो, ओके, अपने को इजी समझ में आ जाता। 2x² माइनस 11x प्लस 5 इक्वल 0। 2 इंटू 5 10, प्रोडक्ट करे तो 10 आना, ऐड आर सब्सट्रैक्ट करे तो 11 आना। सो 10 इंटू 1 करे तो 10 आ रहा एंड 10 1 ऐड करे तो 11 आ रहा। क्लियर? ओके, स्प्लिटिंग मेथड ऑलरेडी आप लोगों को मालूम। ओके राइट, सो माइनस 10 sin थीटा माइनस sin 1 sin थीटा मीन्स माइनस 11 sin थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 10 into 1 10 sin square theta, so 2 into 5 10 sin square theta, okay, and plus 5 as it is equals to 0. Okay, see from first to two terms what is the common? From first to two terms 2 is the common, 2 is the common and sin theta is the common, 2 common and sin 1 sin theta common. So 2 common completed, 1 sin completed means remaining 1 more sin theta, and 1 sin theta completed, 2 common means 2 into 5 10 means minus 5. See 2 sin theta into sin theta, 2 into 5 10 sin theta. Write this one as it is. Sin theta minus 5 equals to 0. Here sin theta, but here minus sin theta means minus 1 is the common. Clear? Okay, now again the common is sin theta minus 5, sin theta minus 5 is the common. Okay, sin theta minus 5 common means remaining 2 sin theta रहता इसमें and next में क्या रहता, minus 1 रहता equals to 0. ओके, साइन थीटा माइनस 5 कॉमन निकाल दिए ना, ये कॉमन निकाल दिए तो क्या रहता, 2 साइन थीटा रहता एंड माइनस 1 रहता. ओके, नाउ प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 मीन्स फर्स्ट वन इक्वल्स टू 0. व्हाट इज द फर्स्ट वन? साइन थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0. प्रोडक्ट इक्वल टू 0 मीन्स first one equal to 0, second one equals to 0. Okay, so sin theta equals to minus 5 become plus 5 and sin theta equals to minus 1 become plus 1 and into 2 become by 2. Okay, now case 1. Okay, case 1 is sin theta equals to 5. Okay, sin theta equals to 5. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन के लाइन में 5 रहता कि अपने को नहीं रहता. साइन 0 वैल्यू 0, साइन 30 वैल्यू 1/2, साइन 45 वैल्यू 1/√2, साइन 60 वैल्यू √3/2, साइन 90 वैल्यू 1. सो ये 5 वो लाइन में अपने को नहीं रहता. 180 साइन 180 लिए तो अपने को 0 आता, बोले तो ये 5 अपने को वो लाइन में नहीं रहता. मीन्स इन दिस केस थीटा डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, सो साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन के लाइन में 5 नहीं रहता. मीन्स इन दिस केस थीटा डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, थीटा डज नॉट एग्जिस्ट. राइट, केस 1 में साइन का वैल्यू पॉजिटिव, थीटा वैल्यू पॉजिटिव नहीं होता. मीन्स थीटा डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, सेकंड केस में देखेंगे. सेकंड केस में तो भी आता कि नहीं आता कि एक बार देखेंगे. केस 2. सो केस 2 इज, व्हाट इज द केस 2? साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2. ओके, 1/2. सो साइन, राइट साइन एज इट इज. 1/2 साइन में कौन सा डिग्री में रहता, अभी बोले ना अपन. साइन लाइन में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन लाइन में 1/2 कहाँ पर रहता, साइन 30 रहता. साइन 30 को क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे, ये प्रॉब्लम्स में ये जो सालू के प्रॉब्लम्स रहते ना, सालू प्रॉब्लम्स हो, जनरल सॉल्यूशन हो, कैसे लिखते हैं अपन, पाई में लिखना पड़ता कंपलसरी. ओके, सो 1/2 को साइन 30 में लिखते हैं. साइन 30 वैल्यू 1/2. 30 को π/6 कैसे लिखा फिर, π/6. पाई मीन्स 180 डिग्री. 6 1 जा 6 3 जा 18, 0 मीन्स π/6 को क्या लिखते हैं अपन, 30 डिग्री. आर 30 डिग्री कैन बी रिटन एज π/6. ओके, राइट. नाउ रिमूव द साइन फंक्शन. थीटा इक्वल्स टू π/6. लेट कैन बी टेकन एज इट इज अल्फा. ओके, इसको क्या ले रहे हैं अपन, अल्फा ले रहे. थीटा वैल्यू कितने आया अपने को, π/6 आया. रिमूव द साइन फंक्शन. साइन को कट नहीं करना. साइन इज द फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट विल नॉट कैंसल्ड. ओके, रिमूव द साइन फंक्शन और जरूरत पड़े तो ऐड द
log फंक्शन ऐसे लेते हैं अपन, राइट. रिमूव द साइन फंक्शन थीटा इक्वल टू पाई बाई 6. पाई बाई 6 कैन बी टेकन एज अल्फा. नाउ वी हैव द वैल्यू अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 6. सॉल्यूशन कंप्लीट होगा. जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहे तो, जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहे तो, जनरल सॉल्यूशन मीन्स प्रॉब्लम साइन में है ना, प्रॉब्लम किस में है, साइन में कन्वर्ट होगा ना. सो साइन में कन्वर्ट होगा तो सॉल्यूशन क्या लिखते हो तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन इंटू अल्फा. ये साइड दिख रहा किसमें, नहीं दिख रहा, राइट. अब दिख रहा, राइट. थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन इंटू अल्फा. ये फार्मूला कब यूज करते हैं अपन, प्रॉब्लम टोटल साइन टर्म्स में कन्वर्ट हुआ तो ये फार्मूला लेते. कास रहा तो अलग लेते और टैन रहा तो भी अलग लेते. वो कास रहा तो क्या लेना, टैन रहा तो क्या लेना, जो प्रॉब्लम में बता दे तुम्हें, राइट. सो यहाँ तो प्रॉब्लम साइन में कन्वर्ट होगा, साइन में रहा तो जनरल सॉल्यूशन क्या है, फार्मूला क्या है, सालू बोल के दिए ना, सालू बोले तो यहाँ तक खत्म होगा. थीटा इक्वल टू पाई बाई 6. थीटा वैल्यू फाइंड आउट करना है, थीटा वैल्यू फाइंड आउट कर दिए. इन केस ऑफ आस्क्ड इन द कोई एग्जामिनेशन राइट द जनरल सॉल्यूशन आल्सो. सो इन दैट केस जनरल सॉल्यूशन फार्मूला इज थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन इंटू अल्फा. ये फार्मूला ओनली if the problem is in total sine terms, then we can use the formula theta equals to n pi plus minus 1 power n into alpha. Now substitute alpha value n pi as it is plus minus 1 power n into as it is. What is alpha value, pi by 6. What is alpha value, pi by 6. This is the general solution of 2 cos square theta plus 11 sin theta equals to 7. This is problem number 11, right. Next 12th question लिखेंगे. Okay, 12th question. Okay, next question is solve root 3 sin theta minus cos theta equals to 2. Okay, right. So little bit change problem. This one is okay. Square term is not there in previous problem. Square term is there means square is converted into easily sin. इसमें भी ये भी वो मेथड से कर सकते, बट इसमें स्क्वायर रूट आता. साइन थीटा बोले तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास थीटा बोले तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा. वो वैसा करने की जरूरत नहीं, सिंपल वे में करेंगे अपन, राइट. सी अंडर रूट ऑफ सॉल्यूशन, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट, सॉरी, अंडर रूट ऑफ साइन थीटा कोएफिशिएंट. व्हाट इज द साइन थीटा कोएफिशिएंट, रूट 3. सो रूट 3 टू द स्क्वायर. ओके, प्लस अंडर रूट ऑफ कास थीटा कोएफिशिएंट बोले तो माइनस 1 स्क्वायर. सिंपल वे में बता रहा हूं मैं, राइट. साइन का कोएफिशिएंट रूट 3 अंडर स्क्वायर रूट लेके साइन का कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस कास का कोएफिशिएंट स्क्वायर. कितने आता है एक बार देखेंगे. स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता, 3 रहता. ओके, माइनस 1 स्क्वायर मीन्स प्लस 1, रूट 3 प्लस 1 रूट 4. आंसर कितने आया, 2 आया. ओके, सो डिवाइड विथ 2. नाउ द गिवन इज गिवन दैट given root 3 sin theta minus cos theta equals to square root 2, राइट. एक बार देखो यहाँ पे कितने आया अपने को, 2 आया. डिवाइड विथ 2, डिवाइड विथ 2 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड विथ 2 ऑन बोथ साइड्स. ओके, डिवाइड विथ 2 ऑन बोथ साइड्स. ओके, सो रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2, रूट 3 साइन थीटा होल बाई 2 भी लिख सकते, नहीं तो नंबर को लिख दिया मैं खाली, बस उतना, तो ऐसे भी लिख सकते. रूट 3 इंटू साइन थीटा बाई 2 भी लिख सकते, नहीं तो रूट 3 बाई 2 इंटू साइन थीटा. माइनस कास थीटा बाई 2 लिख सकते, नहीं तो 1 बाई 2 इंटू कास थीटा भी लिख सकते. कास थीटा बाई 2 नहीं तो 1 बाई, कास के बाजू में कुछ भी नहीं बोले तो कितना 1 है. सो 1 बाई 2 इंटू कास थीटा. ओके, माइनस 1 कास थीटा लिखो, कंफ्यूज हो गए तो 1 बाई 2 कास थीटा. ओके, इक्वल्स टू रूट 2 बाई 2. LHS में डिवाइड करना, बोथ साइड बोल के लिखे ना, LHS में डिवाइड करना एंड RHS में भी डिवाइड करना. ओके, सो रूट 3 बाई को देखो एक बार, कास 30 डिग्री लिख सकते, कास 30 डिग्री लिख सकते.
√3/2 को कास में कितना, कास साइन में या कास में लिखना, बट सेम आने के लिए फार्मूला फॉर्मेशन आने के लिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कास में लिख रहा हूँ, कास π/6 एंड ये साइन थीटा एज इट इज। ओके, ये 1/2 को साइन 30 में लिखो, साइन 30 वैल्यू कितना होता है ऑलरेडी इससे पहले यूज करें ना अपन, 1/2 कैन बी रिटन एज साइन π/6 एंड दिस कास थीटा एज इट इज। एक बार ये देखो √2/2 कैन बी रिटन एज √2 into √2, क्लियर। ओके, 2 को क्या लिख सकते हैं अपन, √2 into √2, बिकॉज √2 into √2 मीन्स √2 to the square, मीन स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 2 ही आता। ओके, इसको थोड़ा चेंज करेंगे अपन, रिवर्स लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कास π/6 माइनस, इसको भी रिवर्स लिखेंगे, फार्मूला आने के वास्ते लिख रहा हूँ मैं, कास थीटा इंटू साइन π/6। ओके, 1√2 कैंसिल मीन्स 1/√2, क्लियर। ओके, साइन थीटा पहले लिखे ये बाद में लिखे, कास थीटा पहले लिखे ये बाद में लिखे। एक बार देखो, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी फॉर्मेशन में, यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी के फॉर्मेशन में है, इक्वल्स टू 1/√2, वैसे ही लिखो, क्लियर। कौन से फॉर्मेशन में ये, साइन ए कास बी, साइन कास माइनस कास साइन, इसलिए साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। ये आगे पीछे कहीं को लिखा है, यहाँ पे देखो, ए बोले तो क्या है थीटा, तो यहाँ पे भी ए बोले तो थीटा, b इक्वल टू π/6, b इक्वल टू π/6। ओके, राइट, इसका अपन फार्मूला लिखना पड़ता है। ये किसका फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक में ये किसका फार्मूला है, वो फार्मूला, राइट, इसका फार्मूला लिख दिया अपन, राइट। ये कौन से फार्मूला है फिर, और एक बार लिख रहा हूँ मैं इसमें, साइन ए, इसमें क्या लिख रहे हैं अपन, ए के बदले में क्या था अपने को थीटा, एंड बी के जगह पे क्या था अपने को π/6 डिग्री। और एक बार लिख रहा हूँ वो, साइन ए कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू 1/√2 था अपने को लास्ट स्लाइड में। ओके, एक बार इसमें इसका फार्मूला क्या लिख रहा हूँ मैं, ये फार्मेशन में है ना, इससे पहले जो लाइन आया अपने को वो कौन से फार्मेशन में बोल के लिख दिए। फिर इसका फार्मूला क्या है, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी फार्मूला इक्वल्स टू कितना अपने को 1/√2। अपने को जो इक्वेशन आया, कौन सा इक्वेशन आया था, साइन थीटा कास 60 माइनस कास थीटा साइन 60 इक्वल टू 1/√2 आया था। सो वो कौन से फॉर्मेशन में बोल के ये लिखा था मैं, बोले तो वो इक्वेशन इसके फॉर्मेशन में, साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। सो इसके हिसाब से ए के जगह पे थीटा है, बी के जगह पे π/6। फिर इसका फार्मूला लिख दिया मैं, ये किसका फार्मूला है, साइन ऑफ ए माइनस बी। सो साइन ऑफ ए माइनस बी फार्मूला क्या है फिर, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ये एज इट इज लिख दिया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन ऑफ ए वैल्यू कितना है थीटा, बी वैल्यू कितना है π/6। ओके, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो साइन आया ना, 1/√2 को भी साइन में लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कहाँ पे रहता, साइन 45 को 1/√2 आता। ओके, लेफ्ट साइड में साइन है ना, तो इसलिए राइट साइड में जो वैल्यू है उसको भी साइन में लिखना चाहिए। यहाँ पे कास रहा तो इसको भी कास में लिखना चाहिए। सो इसको साइन में लिखना चाहे तो साइन में कौन सा वैल्यू है, साइन 45 डिग्री है। सो 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं अपन, π/4, बिकॉज 180/4 कैंसिल करे तो अपने को 45 आता। सी लेफ्ट साइड में भी साइन है, राइट साइड में भी साइन है, तो साइन फंक्शन रिमूव कर दिए समझो, थीटा माइनस π/6 कितना आता फिर π/4। लेफ्ट साइड में भी साइन निकाल दिए, राइट साइड में भी साइन निकाल दिए। सो थीटा माइनस π/6 इक्वल टू π/4। वी नीड थीटा वैल्यू, सो थीटा इक्वल टू माइनस π/6 बिकम प्लस π/6। सो π/4 प्लस π/6। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, थीटा इक्वल्स टू एलसीएम इज 12, बिकॉज 4 टेबल में 12 आता, 6 टेबल में 12 आता। वैसा देखे तो 24 भी आता, बट इजी छोटा नंबर क्या है वो ले ले। 4 के टेबल में 12 कहाँ पर आता, 4 3 वो 3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, 3π कंप्लीट होगा। ओके, 6 टेबल में 12 कहाँ पर आता, 2 सो वो 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, 2 into π 2π। सो दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 3π प्लस 2π कितने हो रहा, 5π/12। सो सोल्यूशन कंप्लीट होगा,
बट जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या होना, लेट इट कैन बी टेकन एज अल्फा। सो प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट होगा। फिर जनरल सॉल्यूशन बोलते तो सेम फार्मूला, बिकॉज ऑफ जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ लास्ट प्रॉब्लम आल्सो कन्वर्टेड इनटू साइन टर्म, बिकॉज साइन फार्मूला जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल्स टू, साइन में कन्वर्ट हुआ तो फार्मूला क्या है फिर, n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू अल्फा। सो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू व्हाट इज अल्फा वैल्यू, 5 पाई बाई 12। This is the general solution of the given problem. सॉल्व बोले तो सोल्यूशन, सोल्यूशन बोले तो क्या है, ओनली थीटा वैल्यू। यहाँ तक सोल्यूशन कंप्लीट होगा। अगर वही क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में जनरल सोल्यूशन पूछे तो कैसे लिखना बोल के अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। जनरल सोल्यूशन, इफ प्रॉब्लम इज इन साइन टर्म मीन्स द फार्मूला ऑफ जनरल सोल्यूशन फॉर द साइन थीटा इज n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू अल्फा। सो थीटा वैल्यू कैन बी टेकन एज अल्फा, सो 5 पाई बाई 12. Clear? So this is the solution of 12th one. Next problem, 13th problem question लिखे. Next problem is 13th problem. Okay, solve the equation sin x plus cos x. Solve the equation sin x plus root 3 cos x equals to root 2. सेम इससे पहले द प्रीवियस प्रॉब्लम 12th प्रॉब्लम कैसे करे वैसे, स्क्वायर्स नहीं है ना इसमें, इसलिए वो इजी प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं अपन। स्क्वायर रहा तो उसको साइन स्क्वायर रहा तो उसको कास में कन्वर्ट कर सकते हैं, कास स्क्वायर रहा तो उसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो इसमें स्क्वायर्स नहीं है। प्रीवियस 12th प्रॉब्लम में भी स्क्वायर्स नहीं था, अपन दूसरे मेथड में करें। ओके, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मीन साइन कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। साइन के सामने कुछ भी नंबर नहीं रहा तो 1, साइन कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस कास कोएफिशिएंट स्क्वायर, या कास कोएफिशिएंट स्क्वायर फर्स्ट लिख के साइन कोएफिशिएंट स्क्वायर बाद में भी लिख सकते हैं। साइन का नंबर होल स्क्वायर एंड कास का नंबर होल स्क्वायर। 1 साइन एक्स मीन्स 1 स्क्वायर, रूट 3 कास एक्स मीन्स रूट 3 स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसल मीन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 रहा तो कितना आता फिर रूट 4। सो रूट 4 वैल्यू 2। सेम थिंग राइट, प्रीवियस प्रॉब्लम में भी 2 आया, सो ये प्रॉब्लम में भी 2 आया। डिवाइड विथ 2 ऑन बोथ साइड। फर्स्ट प्रॉब्लम तो लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है अपने को, गिवन साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स इक्वल्स टू रूट 2। ओके, साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स इक्वल्स टू रूट 2। क्या कौन सा वैल्यू आया फिर, 2 आया ना। ओके, डिवाइड विथ 2, डिवाइड विथ 2। ओके, डिवाइड विथ 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 ऑन बोथ साइड्स। चलो डिवाइड ये भी लिखना होगा। ओके, डिवाइड विथ बोथ साइड, साइन एक्स बाई 2 आर वी कैन राइट 1 बाई 2 इंटू साइन एक्स। साइन एक्स बाई 2 भी लिख सकते या 1 बाई 2 इंटू साइन एक्स भी लिख सकते। नेक्स्ट रूट 3 कास एक्स बाई 2 लिख सकते, नहीं तो रूट 3 बाई 2 इंटू कास एक्स भी लिख सकते। ओके, रूट 2 बाई 2 डिवाइड विथ 2 ऑन बोथ साइड कंप्लीट होगा। ओके, LHS में डिवीजन कंप्लीट होगा, RHS में डिवीजन कंप्लीट होगा। ओके राइट, इसको देखो एक बार, 1 बाई 2 को साइन में लिखिए, 1 बाई 2 को साइन में लिखे तो कितना होता है, साइन 30 डिग्री। अगेन सेम साइन पाई बाई 6। ओके, साइन 30 मीन्स 1 बाई 2 एंड साइन एक्स एज इट इज। 1 बाई 2 को साइन 30 लिखे और साइन एक्स एज इट इज। रूट 3 बाई 2 को कास में लिखना चाहे तो कितना आता, कास 30 डिग्री। रूट 3 बाई 2 को कास 30 डिग्री एंड इंटू कास एक्स एज इट इज। ओके, दिस रूट 2 एज इट इज, डिनोमिनेटर 2 कैन बी रिटन एज root 2 into root 2 because root 2 into root 2 means square root 2 to the square, root 2 to the square means square root cancel. Okay right, see 1 by 2 को sin 30 लिखे, root 3 by 2 को cos 30 लिखे। ओके, थोड़ा रिवर्स लिखेंगे इसको, cos x प्लस ही है ना, ये सामने लिख रहे हैं, ये आगे, ये फर्स्ट लिख रहे हैं, ये सेकंड लिख रहे हैं। cos x इंटू cos पाई बाई 6। ओके, प्लस ये लिख दिए और इसमें कास फर्स्ट लिखे, ये लिख के इसमें साइन फर्स्ट लिखेंगे, साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई 6। ओके, यहाँ पे देखो एक बार, 1 रूट कैंसल मीन्स रिमेनिंग
वन मोर रूट 2 इन द डिनोमिनेटर। क्लियर, कुछ भी चेंज नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। ये फर्स्ट लिखा, उसमें रिवर्स प्रोडक्ट है ना, वैसे भी लिख सकते, और ये भी प्रोडक्ट है, थोड़ा रिवर्स करके लिख दिए। सो विच इज इन द फॉर्म ऑफ cos A cos B प्लस साइन A साइन B के फॉर्मेशन में है, इक्वल्स टू 1/√2 एज इट इज। सो A के प्लेस में क्या है फिर इसका वैल्यू, A के प्लेस में x है, ओके। B के प्लेस में क्या है, π/6। देखो एक बार कंपेयर करो, A के जगह पे x, A के जगह पे x, B वैल्यू π/6, B वैल्यू π/6, राइट। ये इक्वेशन, आपने को जो इक्वेशन आया वो कौन से फॉर्मेशन में, ये फॉर्मेशन, ये फार्मूला नहीं, ये फॉर्मेशन में बोल के भी लिखे। फिर ये फॉर्मेशन लिखे ना, फिर इसका फार्मूला लिखना पड़ता। इसका फार्मूला क्या है फिर, cos ऑफ A माइनस B है। इसका फार्मूला क्या है, cos ऑफ A माइनस B इक्वल्स टू 1/√2 एज इट इज, राइट। और एक बार सुनो, ये कौन से फॉर्मेशन में है बोल के ये फॉर्मेशन लिखे, बट इसका फार्मूला क्या है, cos ऑफ A माइनस B। सो फार्मूला इज cos ऑफ A माइनस B इक्वल टू cos A cos B प्लस sin A sin B। और ये राइट साइड में जो 1/√2 है वो 1/√2 एज इट इज लिखा। ये A वैल्यू B वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, cos ऑफ A वैल्यू इज x, B वैल्यू इज π/6 इक्वल्स टू, यहाँ पे cos है ना, तो 1/√2 को भी कैसे लिखना, cos आया जैसे लिखना, cos 45 मीन्स 1/√2। 45 को ऑलरेडी बोले कैसे लिख सकते, π/4। ये जो इक्वेशंस सॉल्व वाला इक्वेशंस, जनरल सॉल्यूशन वाला इक्वेशंस कंपलसरी डिग्रीज नहीं लिखना, पाई में लिखना कंपलसरी, ओके। 45 डिग्री है, बट 45 डिग्री नहीं लिखा, मैं क्या लिखा, cos π/4। सो 1/√2, यहाँ पे cos है ना, तो 1/√2 को भी cos में लिखना चाहिए। रिमूव द cos फंक्शन, सो रिमूव द cos फंक्शन करे तो x माइनस π/6 इक्वल्स टू π/4। LHS में cos रिमूव कर दिए, RHS में भी cos रिमूव कर दिए। cos रिमूव कर दिए तो अपने को x माइनस π/6 इक्वल टू कितना आया, π/4। वी नीड x वैल्यू। सॉल्यूशन मीन्स फाइंड द वेरिएबल। इन द क्वेश्चन व्हाट इज द वेरिएबल, x इज द वेरिएबल, मीन्स find the x value. Solve means find the x. Minus π/6 become plus π/6 to the right side. Already right side में π/4 है, so ये π/6 माइनस था, वो वाला क्या होगा, प्लस π/6 होगा। ऑलरेडी इससे पहले प्रॉब्लम में करे अपन जनरल सॉल्यूशन, LCM 12 आता, 4 के टेबल में 4 3 मीन्स 3 इंटू न्यूमरेटर, 6 के टेबल में 2 2 इंटू न्यूमरेटर मीन्स 3π plus 2π by 12 means 5π by 12. So after x value it can be taken as alpha. Okay? अभी देखो एक बार नया फार्मूला लिखना पड़ता है यहाँ पे। इससे पहले प्रॉब्लम कन्वर्ट किस में होगा, द प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इनटू साइन टर्म, मीन्स साइन का फार्मूला क्या था, n प्लस -1 पावर n इंटू अल्फा। बट अब प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट होगा, कास में कन्वर्ट होगा, तो कास का फार्मूला लिखना पड़ता जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। सो जनरल सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा। ये कब यूज करते फार्मूला, द प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इनटू कास। इफ द प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इनटू कास टर्म्स मीन्स जनरल सॉल्यूशन फार्मूला इज 2n pi plus or minus alpha. If the problem is converted into sine term means formula is n pi plus -1 power n into alpha, right? साइन में कन्वर्ट हुआ तो प्रॉब्लम ये फार्मूला, प्रॉब्लम कास में कन्वर्ट हुआ तो ये प्रॉब्लम। सो सर इसको साइन में कन्वर्ट कर सकता ना, कर सकते। सॉल्यूशन कैसे भी कॉन्सेप्ट डिफरेंट आता मगर आंसर सेम रहता, मार्क्स कट नहीं होता। ओके, प्रॉब्लम साइन में भी कन्वर्ट कर सकते, प्रॉब्लम कास में भी कन्वर्ट कर सकते, इससे पहले का प्रॉब्लम भी साइन में कन्वर्ट कर सकते, कास में भी कन्वर्ट कर सकते। आंसर डिफरेंट आता बट प्रोसीजर इज सेम। ओके, राइट। सो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा। सब्स्टिट्यूट अल्फा वैल्यू 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा। व्हाट इज अल्फा वैल्यू, 5 पाई बाई 12. Okay, this is the general solution of
the given equation sin x plus root 3 cos x equal to root 2, राइट. प्रॉब्लम सॉल्व बोल के दिया, बोले तो ओनली वेरिएबल वैल्यू फाइंड आउट कर दिए तो हो जाता, बट सेम प्रॉब्लम अपने को जनरल सॉल्यूशन में भी पूछने के चांस है, इसलिए मैं यहाँ से एक दो स्टेप्स से ज़्यादा लिख के जनरल सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. ओके, राइट. नेक्स्ट प्रॉब्लम, right, next problem is solve the equation 7 sin square theta plus 3 cos square theta equals to 4. same again problem, सेम स्क्वायर टर्म्स है. स्क्वायर टर्म्स नहीं रहा तो इससे पहले डिवाइड विथ 2 करे ना, वो सेम प्रॉब्लम है, बट ये इसमें स्क्वायर्स है ना, तो साइन स्क्वायर कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉस टर्म्स एंड cos स्क्वायर कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइन टर्म्स. बोले तो प्रॉब्लम साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, cos में भी कन्वर्ट कर सकते. ओके, सो फर्स्ट राइट द इक्वेशन 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4. ओके, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4. ओके, 7 sin स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखो, साइन में कन्वर्ट करेंगे अपन, 7 sin स्क्वायर थीटा या cos में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. कुछ भी नहीं है वैसा, डिफरेंस कुछ भी नहीं है. cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज बाय आइडेंटिटी फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, या प्लस 4 इधर आया तो माइनस 4. क्लियर. ओके, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 इक्वल्स टू 0. cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा. ओके, राइट. 4 नेक्स्ट टर्म में ले लेंगे. ओके, राइट. सो 7 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 become right to the left side is minus 4 equals to 0. 3 into 1 3, 3 into sin square 3 sin square plus 4 become minus 4. Okay, right. First of all square term C, 7 sin square minus 3 sin square means, okay, 7 sin square minus 3 sin square means 4 sin square theta. स्क्वायर टर्म से सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, 7 sin square theta minus 3 sin square theta means 4 sin square theta. 3 minus 4 minus 1 equals to 0. Okay, right. Next to 4 sin square theta equals to minus 1 become plus 1. Okay, minus 1 become plus 1 to the right side. Okay, next is go right. So sin square theta equals to, sin square theta equals to 1 by into 4 become by 4, divide 4. Okay, so sin square theta equals to, sin theta equals to 1 by root 2. Okay, plus or minus 1 by root 2. Okay, 1 by root 4 means, root 4 means 1 by root 2. Okay, so sin theta equals to 1 by root 4 वैल्यू 2. ओके, स्लाइड दिख रहा लास्ट में बोर्ड पे दिख रहा कि वैल्यू, ओके, राइट, स्लाइड में दिख रहा, राइट. ओके, sin थीटा इक्वल्स टू 1 by 2, सॉरी, प्लस आर माइनस 1 by 2 लिख सकते हैं ना इसको, स्क्वायर रूट बोले तो प्लस आर माइनस 1 by 2. ओके, सो थीटा इक्वल्स टू, सो sin थीटा इक्वल्स टू 1 by 2 को कैसे लिख सकते हैं अपन, प्लस आर माइनस sin पाई बाई 6, sin 30 लिख सकते हैं ना इसको, पाई बाई 2 मीन्स 1 by 2 को क्या लिख सकते हैं, sin पाई बाई 6. ओके, सो sin पाई बाई 6 मीन्स रिमूव द साइन फंक्शन मीन्स थीटा इक्वल्स टू प्लस आर माइनस पाई बाई 6. ओके, प्लस आर माइनस पाई बाई 6. ओके, सो थीटा वैल्यू कंप्लीट होगा. इट कैन बी टेकन एज अल्फा, इट कैन बी टेकन एज अल्फा. ओके, राइट. सो जनरल सॉल्यूशन साइन में कन्वर्ट होगा ना अपने को, सो जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन साइन में कन्वर्ट होगा, मीन साइन में जनरल सॉल्यूशन क्या है फिर, n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू अल्फा. ओके, सो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू अल्फा वैल्यू क्या है अपने को, प्लस आर माइनस पाई बाई 6. ओके, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 14th प्रॉब्लम. ओके, okay, next solution is, next problem is solve the equation. The question is tan theta plus 3 cot theta equals to 5 sec theta. Okay, the problem is tan theta plus 3 cot theta equals to
5 sec थीटा। ओके, सो इसका सॉल्यूशन क्या, अपने को साइन कास में प्रॉब्लम्स है ना। ओके, इसको क्या करेंगे, थोड़ा साइन कास में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, द गिवन इक्वेशन इज tan थीटा प्लस 3 cot थीटा, tan थीटा प्लस 3 cot थीटा इक्वल्स टू 5 sec थीटा। साइन कास में कन्वर्ट करो, फार्मूला साइन आपने का ऑलरेडी। सो tan फार्मूला इज in general formula sin theta by cos theta, okay, and next plus 3 into cot theta formula cos theta by sin theta, okay, equals to 5 into sec theta means sec is reciprocal to cos means 5 by cos theta, okay, reciprocal is 5 sec theta means sec reciprocal 1 by cos, sec reciprocal cos है ना, so sec theta को क्या लिख सकते हैं अपन 1 by cos theta, तो 5 by में cos theta चलेगा। ओके, लेफ्ट साइड में सॉल्यूशन एलसीएम क्या है अपने को, sin cos बोथ द टर्म्स है ना, सो sin इन थीटा इनटू cos theta या cos theta into sin theta, right? Okay, so cos theta is there, missing is sin, so sin into sin, sin square theta, okay, sin square theta प्लस, so sin square theta लिख दिए प्लस sin is completed, cos is missing, so cos into 3 cos means 3 cos into cos, 3 cos square theta equals to 5 by cos theta, clear? Okay, see in LHS RHS डिनोमिनेटर में टर्म cos theta टर्म सेम है ना, सो cos theta कैंसिल, cos डिनोमिनेटर में रहा तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में रहा तो LHS RHS में कैंसिल कर सकते हैं, या एक तरफ रहा तो एक मल्टीप्लाई में रहना, एक डिविजिबल में रहना। ओके, राइट। ओके, सी रिमेनिंग sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या अपने को साइन है ना, साइन इज इन डिविजिबल, राइट साइड में चले गए तो मल्टीप्लाई होता, सो 5 इंटू साइन थीटा। ओके, राइट। सो सी दो साइन टर्म्स ऑलरेडी है ना, सो दो टर्म्स ऑलरेडी साइन में है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं अपन साइन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, साइन में कन्वर्ट करना बोले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को साइन का फार्मूला क्या है, फ्रॉम आइडेंटिटी फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5 sin theta as it is. Okay, right, now sin square theta into sin square theta plus 3 into 1 3 minus 3 into sin square 3 sin square theta and plus 5 sin theta become minus 5 sin theta equals to 0. Clear? Okay, plus 5 sin theta इधर आया तो minus 5 sin theta. Okay, see sin square theta minus 3 sin square theta means 1 sin square minus 3 sin square means क्या आता, minus 2 sin square theta. Okay, minus 2 sin square theta and minus 5 sin theta and plus 3 equals to 0. Clear? 1 sin square theta minus 3 sin square theta means minus 2 sin square theta and minus 5 sin theta plus 3 equal to 0. Let minus is the common, minus common means minus term become plus term and plus term become minus term, plus 5 sin theta and plus 3 become minus 3. minus common निकाले तो minus term plus होता या plus term minus होता। ओके, now splitting method करेंगे इसको। splitting method क्या है, 2 sin square means 2x square plus 5 sin theta means 5x minus 3 equal to 0. 2 into 3 6 आता। ओके, सो 6x minus 1 लिख सकते हैं इसको, 6x minus x। ओके, सो 2 sin square theta splitting method कर रू प्लस 6 sin theta minus 1 sin theta, 6 sin theta minus 1 sin theta। देखो एक बार 6 sin theta minus 1 sin theta means plus 5 sin theta and minus 3 as it is equals to 0. Clear? Okay, right. Next minus 6 sin square theta from first to 2, first to 2 common क्या निकाल सकते हैं इसमें, 2 is the common and sin theta also common, so 2 is the common and 1 sin theta is the common, so 2 is the common, 1 sin theta common means one more sin is there means sin theta plus 2 is the common completed, 1 sin also completed, 6 means 2, 3 is the 6 means sin theta plus 3. Clear? And write this one same as it is, sin theta plus 3 equals to 0. Clear?
साइन थीटा प्लस 3, बट यहाँ पे साइन है, यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, मीन्स माइनस इज मिसिंग, मीन्स -1 इज मिसिंग. ओके, वंस चेक -1 इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा, -1 इंटू +3 -3. अगेन कॉमन इज sin theta plus 3 is the common. Okay, sin theta plus 3 is the common, remaining 2 sin theta minus 1 equals to 0. Okay, sin theta plus 3 common means remaining 2 sin theta minus 1 equals to 0. Okay, right. Next, product equal to 0 means first one equal to 0 and second one equal to 0. First one equal to 0 means sin theta equals to, sorry, sin theta plus 3 equals to 0. Okay, and sin 2 sin theta minus 1 equals to 0. 2 sin theta minus 1 equals to 0. From this one, sin theta equals to plus 3 become minus 3, and minus 1 become plus 1, and into 2 become by 2. Right, now case 1. सो फर्स्ट केस में फर्स्ट वैल्यू लेना, सेकंड केस में सेकंड वैल्यू. सो फर्स्ट केस में जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना एंड सेकंड केस में जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना. व्हाट इज द फर्स्ट केस? साइन थीटा इक्वल्स टू -3. एक बार देखो, ऑलरेडी बोले थे अपन साइन में वैल्यूज क्या अपने को, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 180, वैल्यू 0. सो साइन में -3 है, इसमें 3 है कि नहीं, मीन्स इन दिस केस थीटा डज नॉट एग्जिस्ट. सो थीटा डज नॉट एग्जिस्ट. In this case theta does not exist, means ओके. साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 है ना, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 क्या लिख सकते हैं फिर? साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 मीन्स साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री मीन्स 5/6. ओके, 1/2 को साइन 5/6 साइन 30 में लिख सकते हैं. रिमूव द साइन फंक्शन मीन्स 5/6. इट कैन बी टेकन एज अल्फा. प्रॉब्लम साइन में कन्वर्ट होगा ना, सो जनरल सोल्यूशन इंटू अल्फा होगा. इसमें अल्फा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 पावर n इंटू अल्फा. जनरल सॉल्यूशन. ओके ओके. इफ यू लाइक द क्लास, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. ओके, थैंक यू.